Hello बच्चों. So today we are going to see the formation of cos graph. Okay. तो last time हमने देखा था sin graph. So now we are going to see cos graph. So if you see this table, this is cos table. अब देखिए. So exactly cos 0 is 1. Cos pi by 6, which is 30, is root 3 by 2, which is 0.87. This is cos 60, 90, 120, 150, 180, 210. Okay, and this is 240, 270, and this is 300, right? And this is 330, and this is 360. So these are the radian measure, and this is the value. And with the help of this, if you plot, you will get graph like this. Okay. So गलती से कर दिए. So देखिए बच्चों, ये आपका साइन ग्राफ है. अगर ये ग्राफ को आप लंबा कर दोगे तो you will get the graph like this. You see, this is the cos graph, not sin, cos. See, this is sin 0 is 0. So आपका जो साइन ग्राफ है वो देखिए ओरिजिन में इंटरसेक्ट कर रहा है. यहाँ पे cos 0 is 1, तो इसलिए ऊपर है ये. एंड दिस इज cos 90 is 0, so here you are having 0, and here sin 90 is 1, so here it is 1. So this is exactly the cos graph. Okay बच्चों, cos ग्राफ और साइन ग्राफ का बिहेवियर देखा जाए तो अपोजिट है. कैसे? So when sin is 0, cos will be 1, correct? And when sin is 1, cos will be 0. So like that, if you see, they are behaving just in a opposite manner, correct? अब देखिए पाई में है -1, correct? And यहाँ पे देखिए पाई में है 0. So this is cos graph. And cos graph, if you see the behavior in first quadrant, second quadrant, third quadrant, now first quadrant is 0 to pi by 2, so this entire represents first quadrant. Okay, this is, I can write first quadrant, pi by 2 to pi, so this is second quadrant, and this is third quadrant, and this totally belongs to fourth quadrant, correct? So first quadrant is, okay, actually there is some in first quadrant, if you see, the value decreases from 1 to 0. In second quadrant, again the value of cos function decreases from 0 to -1. In third quadrant, it increases from -1 to 0. In fourth quadrant, it increases from 0 to 1. Okay, so this pattern you can get here also in this box. You see, decreases from 1 to 0, फिर से decrease from 0 to -1, फिर increase from -1 to 0, again it increases from 0 to 1. So this is the pattern of cos, correct? Now if you see the domain and ranges over here, it is very important. Domain means, I told you, it is input जो put कर सकते हो. So domain is, you can put any real number, that is R. What is R? R is, you can say, it is set of real numbers, right? Now what is range? बताइए आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? Output you are getting the set of all y such that output you are getting between 1 and -1, right? So देखिए यहाँ पे आपको जो output है, so we will see the textbook. In textbook the figure is very much clear. So whatever radian you are putting, the value of the cos function lies between 1 and -1. So here you can write the set of all y such that y is less than or
so it lies between, so you can say like that, -1 greater than equal to y less than equal to 1. So that means the value of y lie between -1 to 1 comma where y belongs to real number. So this is the range. ठीक है बच्चों, तो आप कॉस फंक्शन के लिए कुछ भी पुट कर सकते हो और आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो है माइनस और 1 के बीच में. इफ़ यू वांट टू राइट इन इंटरवल फॉर्म यू कैन राइट -1 to 1 इंक्लूडिंग. तो आप कॉस का कोई भी वैल्यू ले लीजिए बच्चों, -1 से आपको नीचे नहीं मिलेगा और 1 से ऊपर नहीं मिलेगा. यू विल ऑलवेज गेट बिटवीन -1 to 1. ठीक है बच्चों, तो देखिए ग्राफ जो लहरा रहा है वो 1 और -1 के बीच में ही लहरा रहा है. क्लियर. चलिए अब बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज cosec function, because you know that cosec function is reciprocal of sin function. ओके, ये sin function का रेसिप्रोकल है. ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको cosec का ग्राफ बनाना है तो सेम टेबल बनाओगे बच्चों. ओके, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा. तो ऐश्वर्या ग्राफ बना के मुझे भेजना. तो ये x में आप लोगे 0, 30, 60, 90, 120, नॉर्मल 150. ठीक है, एंड दिस इज 90. तो आप चाहे तो कोई एक वैल्यू इन दोनों में ले सकते हो हर बार. ठीक है, इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ यू विल गेट ग्राफ समथिंग लाइक दिस. अब ध्यान से देखिए, ये आपका कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है. ध्यान से देखिए. ठीक है, तो ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π. करेक्ट. यहाँ से यहाँ तक स्टडी करते हैं. तो when I put cosec 0 that is infinity, cosec 0 infinity है बच्चों. कैसे बताइए. so cosec 0 को मैं लिख सकता हूँ 1/sin 0. sin 0 is 0, 1/0, 1/0 is infinity. करेक्ट. तो बच्चों इन्फिनिटी यानी एकदम ऊपर है ये. करेक्ट. तो ऊपर से धीरे 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 वो नीचे आ रहा है. अल्टीमेटली एट π/2 इट इज 1. तो यानी 0 से π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ कोसेक फंक्शन कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1. उसके बाद 1 से ये इंक्रीज हो रहा है बच्चों. 1 से इंक्रीज होके इन्फिनिटी तक जाएगा ये, बिकॉज कोसेक पाई इज इन्फिनिटी. ओके, अब जैसे आगे जाओगे ये -इन्फिनिटी से it increases and come to -1, and from 3π/2 to 2π it decreases from -1 to -infinity. ठीक है बच्चों, तो पहले ये गरीब हो रहा है, फिर अमीर हो रहा है, फिर गरीब से अमीर हो रहा है, फिर अमीर से गरीब हो रहा है. अमीर गरीब समझ में आ रहा है ना बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. तो ये पैटर्न को आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया. अब मेरे को बॉक्स से मैच करके देख सकते हो. देखिए ये है कोसेक फंक्शन. ठीक है, तो पहले डिक्रीज कर जाता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, फिर इंक्रीज कर जाता है 1 to इन्फिनिटी. मतलब ऊपर से आया 1 को छू के ऊपर चला गया है ना बच्चों. ये देखिए ऊपर से आया 1 को छू के ऊपर चला गया, नीचे से आया -1 को छू के नीचे चला गया. ऐसे आप याद कर सकते हो. करेक्ट. और उसके बाद में इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, फिर इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1, फिर डिक्रीजेस फ्रॉम -1 to -इन्फिनिटी. ठीक है बच्चों, तो ये है कोसेक का वेरिएशंस, कब इंक्रीज कब डिक्रीज. अब आपको ये बताना है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब बताइए बच्चों आप क्या क्या पुट कर सकते हो. आपको सारा वैल्यू पुट करना है, बस ये देख लेना है कि बच्चों इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए. देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी कब आता है. कोसेक व्हेन द साइन बिकम्स 0, बिकॉज व्हेन साइन इज 0, 1/0 यू आर गेटिंग इन्फिनिटी. ये बात एकदम सही है बच्चों. तो 1/0 साइन 0 कब आता है. you know sin is becoming 0 at n/pi. Am I right? Because you know that sin n/pi is 0. इसका मतलब you can say that cosec function approaches infinity at n/pi. तो यानी
आप जो वैल्यू पुट करते हो इट शुड नॉट बी n पाई. सो cosec कैन टेक एनी वैल्यू okay as input except n pi, because when you put n pi sin becomes 0, so 1 by 0 is infinity. तो बस बच्चों ये याद रखना कि आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए. तो आप लिख सकते हैं डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number but x should not be equal to n pi where n belongs to integer. तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों, किसका? डोमेन का. तो यानी ये सिंपल ये कह रहा है कि यू कैन पुट एनी वैल्यू बट यू शुड नॉट पुट n पाई, बिकॉज इन n पाई cosec बिकम्स इंफिनिटी. अब आपको देखना है बच्चों रेंज. अब बताइए रेंज में आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे. सो यू सी द ग्राफ, यू विल बी गेटिंग एनी रियल नंबर, लेकिन देखिए आपको 1 से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है और -1 से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये -1 तक आके वापस नीचे मुड़ रहा है. एम आई राइट? सो दिस इज -1, दिस इज 1. तो व्हाट कैन यू से? यू कैन से दैट द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर. एकदम सही बात है. और y शुड बी लेस देन -1 और y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये जो है रेंज बन गया आपका. ठीक है बच्चों, तो यानी कोसेक का जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस इट विल नॉट कम बिटवीन -1 to 1. ओके, एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स. ओके, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक का. सेम अगर आपको कोसेक समझ में आ गया तो सेक भी समझ में आ जाएगा. सेक को हम क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस x. ठीक है बच्चों, अब बताइए cos 0 कब आता है? when you are having sin 2n plus 1 pi by 2. so in these circumstances you are going to get cos 0, and when cos is 0 this becomes infinity. तो यानी you can put any value, बस you should not put 2n plus 1 pi by 2, because in that case cos approaches 0 and sec approaches infinity. तो अब क्या लिखोगे बताइए बच्चों? डोमेन इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number, x must not be equal to 2n plus 1 pi by 2, ओके, कॉमा n belongs to z. ये याद रखना बच्चों. रेंज, अब रेंज बताइए. देखिए ये है सेक का ग्राफ, ये है सेक का ग्राफ फर्स्ट वाला. तो ग्राफ में आप देखोगे तो 0 से पाई बाई 2 में इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 टू ऊपर इन्फिनिटी, फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी, बट अगेन फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1. देन फ्रॉम पाई टू 3 पाई बाई 2 इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम -1 to minus infinity, and from 3 pi by 2 to 2 pi it is decreasing from infinity to 1. तो ये पैटर्न है बच्चों. यहाँ देखिए आपका जो आउटपुट है यू कैन गेट एनी रियल नंबर बट यू विल नॉट गेट बिटवीन 1 to -1. 1 और -1 के बीच का जो वैल्यू है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा. करेक्ट? तो रेंज आप कैसे लिखोगे? सेम, द सेट ऑफ ऑल y such that y is belonging to what? Real number, and the output will be less than equal to -1 or greater than or equal to 1. तो ये बच्चों आपको मिलेगा रेंज में. ठीक है, तो सेक हो गई, सेक का ये ग्राफ हो गई. ओके, तो देखिए बच्चों साइन आपको समझ में आ जाने से कॉस समझ में आ जाएगा, कोसेक समझ में आने से सेक समझ में आ जाएगा. तो ये है. अभी नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टैन ग्राफ. किसकी बात करते हैं? टैन ग्राफ. अब पहले उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं डोमेन और रेंज की. नाउ टैन एक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? यू नो इट इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स. करेक्ट? सो व्हेन cos x approaches 0,
tan अप्रोचेस इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? cos 0 कब आता है? when you are having 2n+1 पाई बाई 2। तो इसका मतलब डोमेन क्या होना चाहिए? आप क्या क्या पुट कर सकते हो? यू कैन पुट लिटरली एनी वैल्यू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R। परंतु किंतु आपको x को 2n+1 पाई बाई 2 पुट नहीं करना है, कॉमा n बिलोंग्स टू z। तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका डोमेन है। रेंज बताइए, रेंज आपको क्या क्या मिल सकता है? रेंज के लिए हम थोड़ा सा ग्राफ चेक कर लेते हैं। सो बच्चों tan का जो ग्राफ है वो दिखने में ऐसे होगा, थोड़ा सा खतरनाक ग्राफ है, देख लीजिए। सो दिस इज tan ग्राफ, ठीक है। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 में तो बच्चों देखिए 0 से पाई बाई 2 में इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अमीर हो रहा है। फिर पाई बाई 2 से पाई में बच्चों अगेन ये इंक्रीज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में। पाई टू 3 पाई बाई 2 में देखिए पाई बाई 2 से पाई में देखिए बच्चों ये इंक्रीज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0। पाई टू 3 पाई बाई 2 इट इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, करेक्ट। एंड 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई विच इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिए कि tan देखिए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फिर इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। हर जगह इंक्रीजिंग पैटर्न है बच्चों। तो आप ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में भी इंक्रीजिंग पैटर्न ही है, करेक्ट। ध्यान से देखिए कैसे इंक्रीजिंग पैटर्न है। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्रीज हो रहा है बच्चों। एक फ़ोन बार बार आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है बच्चों।